ಮಿತ್ರರೇ, ತಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾಶೀಲ್ ಬೆಂತೇಜಿಯವರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬೌದ್ಧ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮೀಡಿಯಾ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ, ನಾಳೆ ಬರುವ ತಿಂಗಳು 26 ನವೆಂಬರ್ ಆ ದಿನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಿನ. ಆ ದಿನದಂದೇ ಭಾರತ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಶೀಲ್ ಬೆಂತೇಜಿಯವರು ಈ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬೌದ್ಧ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರ ಮಹಾಬೋಧಿ ಮಹಾವಿಹಾರವನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಯೋಜಕರಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಘೋಷ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಗ್ಗೇನವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ, ಬೌದ್ಧ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇರಲಿ, ಬೌದ್ಧ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಇರುವಂತಹ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೌದ್ಧ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಸಮವಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶನವೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಹರಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ ಹೇಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ 2ನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, 1ನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರೇ ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಅವರೇ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ BSI ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಮೀರಾತಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಾಲನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಸಜ್ಜಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. 26 ನವೆಂಬರ್ ಅಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಬುದ್ಧ ಮಹಾಬೋಧಿ ಮಹಾವಿಹಾರದ ಮುಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದು ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಕ್ಯಾತನ್, ವಿಶ್ರಾಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ अधिकारी ಹಾಗೂ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್टर ऑफ टूरिज्म ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. जिले अलग अलग राज्यों के पदाधिकारी जो है उनको हम जोड़ करके अभी अनागरिक धम्मपाल जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो में हाईलाइट किया। स्वामी विवेकानंद को भारत का सिलेबस में बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन जिस अनागरिक धम्मपाल ने अपना जिंदगी भारत में दिया, सारे बुद्ध धम्म के विकास को स्थानों को एक किया, उन अनागरिक धम्मपाल को भारत में भुला दिया गया। बुद्ध धम्म को भारत में प्रचारित प्रसारित काम करने के लिए अनागरिक जिस धम्मपाल इस देश में आया है, उसी साल बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ है। 1891 में जन्म हुआ है। तो बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम जाते जाते बुद्ध के धम्म को स्वीकार करके और लोगों को गुलामी से बाहर निकालने का रास्ता बताया है कि आजाद हो जाओ, बुद्धं शरणं गच्छामि, आप बुद्ध के अपने बुद्धि का विकास करो, बुद्धि का अनुसरण करो। तो ये मार्ग दिया है। तो हम लोग अनागरिक धम्मपाल जी का 160वीं जयंती पटना में बहुत बड़ा विशाल मैदान है, उसको पुराना अशोका मैदान नाम था, अभी गांधी मैदान है। वो गांधी मैदान में 17 सितंबर को अनागरिक धम्मपाल जी का हमने 160वां जयंती मनाया। तो उस जयंती प्रोग्राम में यहाँ से कर्नाटक से हमारे प्रतिनिधि लोगों में से वेंकटेश जी बीजापुर से और देवेंद्र हेगड़े जी वगैरह शाहपुर से और बेंगलोर से जी गोपाल और उनके साथी लोग काफी संख्या में अपने मावड़ी शंकर वगैरह सब लोग पटना में आए हैं। वो प्रोग्राम में भाग लिया है 17 सितंबर को। तो हम लोगों ने अपना न्यायपूर्ण मांग को
दुनिया के सामने रखा है। तो हम लोग आने वाला ये 26 नवंबर संविधान दिवस भारत का, उस दिन में पूरे देश में जिलाधिकारी के मार्फत, तहसीलदार के मार्फत, ब्लॉक ऑफिसर के मार्फत मुख्यमंत्री बिहार को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम गृह मंत्री, अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख, उनको ज्ञापन भेजने का अभियान शुरू किया है। तमाम हमारे बौद्ध संगठन, अंबेडकराइट संगठन, फुले शाहू अंबेडकर बसवन्ना के मानने वाले लोग जो समानता में विश्वास करते हैं, न्याय में विश्वास करते हैं, जो बंधुत्व में विश्वास करते हैं, ऐसे सभी संस्थाओं को हमने कहा है कि अपना अपना संस्था के लेटर पैड पे हम जो मैटर दे रहे हैं हिंदी इंग्लिश में, उसको टाइप करके, और आप जितना संस्था है सब लेटर हेड जमा करके रैली बना करके जाइए और इसको ज्ञापन दीजिए, जिलाधिकारी को ज्ञापन दीजिए, ताकि जिलाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन बिहार सरकार में अन्य जगह में जाए। हमारे इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां बुद्धिस्ट लोग हैं, वो लोग ज्ञापन वहां का एम्बेसी के माध्यम से भारत सरकार को भेजेगा। तो इसके लिए तैयारी चल रही है। ये 26 नवंबर अभी आने वाला उस दिन में है। उसके बाद हम 3 महीने तक के पूरा तैयारी कर रहे हैं। 3 महीने प्रचार करेंगे। बुद्ध गया में बहुत मेला जैसे लगता है, सारा हिमालयन लोग, हिमालयन कंट्री का और यूरोपियन, जर्मनी वगैरह के लोग, ठंडे मुल्क के लोग आते हैं। हम पंपलेट बांटेंगे, उनको लिफलेट बांटेंगे, बुद्धिस्ट पे अन्याय हो रहा है, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, ये बात को हम जनता के सामने बताएंगे। और 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा है बौद्ध इतिहास में, क्योंकि भगवान बुद्ध उस दिन घोषणा किया, आज से 3 महीने के बाद मैं अपना शरीर छोड़ेगा। माघ पूर्णिमा को हजारों बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी बुद्ध के पास में आए हैं। तो माघ पूर्णिमा का दिन हमने चुना है। माघ पूर्णिमा के दिन हम लोग महापरित्राण पाठ, रात भर अखंड पाठ करेंगे। बड़े बड़े हमारे गुरुजी, मेरे गुरुजी जो है वो बहुत बड़े हैं, भारत रत्न जैसे उनको 3 अवार्ड है म्यांमार सरकार की ओर से। भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो, जो बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु भाई है, हमारे बड़े गुरुजी है। उस भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साई, जिन्होंने यहाँ पर आपके विजयपुर में 1949 में 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1949 को लगभग 24,000 लोग नया बुद्धिस्ट बनाए थे। स्टेडियम में पूरा सब लोग व्हाइट ड्रेस पहन के दीक्षा लिए थे। उस समय आर्य अवधि साहब, मल्लप्पा कोट्याड़कर जी, उनके सिंदगी साहब, सिंदूर साहब और एक कैतन साहब के बड़े भाई, और ये पूरा परिवार उस समय में वो बुद्ध धम्म दीक्षा किया है, रमाबाई, कैतन और अवधि साहब मिलके। तो वो एक बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ था। उसमें मैं उस समय आया था, 26-27 साल मेरा उम्र था, नया नया बनते था। तब से मेरा आना जाना बीजापुर में है। और बीजापुर में जो बुद्ध धम्म का लहर आया बाबा साहब की वजह से, तो यहाँ पर बुद्ध विहार निर्माण भी हुआ, बुद्ध विहार निर्माण समिति भी है, काफी काम चल रहा है। तो ये हमारे तमाम बुद्धिस्ट लोगों को हम पर्सनली आके मिल करके बात करके कि आपको बुद्ध गया में आना है, लोगों को भेजना है, जो नहीं जा सकता है उसको टिकट बना के भेजो और अपना आवाज वहां रखने के लिए बोलिए। दुनिया की मीडिया को हमने आमंत्रित किया है और आपके माध्यम से ये बात हम जनता तक, सरकार तक, सब जगह में कि बुद्धिस्ट लोगों पे बहुत बड़ा अन्याय है, बुद्धिस्ट लोगों का स्थान बुद्धिस्ट लोग के हाथ में नहीं है। यही मैंने आप लोगों के बीच में बात रखी। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का बड़ा उत्सव से उस दिन हम लोग धरना शुरू करेंगे, हंगर स्ट्राइक करेंगे, अनडिफिनिट कार्यक्रम चलेगा। उस दिन से भूख हड़ताल करने के लिए लोग बैठेंगे। हमारे कर्नाटक के बनते लोग, उपासक लोग उसमें शामिल होंगे, अलग अलग राज्यों से शामिल होंगे, अलग अलग देशों से भी आएंगे। तो वो बड़ा एक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं कि ताकि बिहार सरकार पे असर हो, बिहार सरकार बुद्धिस्ट का स्थान जो है पुराना कानून खत्म करे, 1949 बोध गया टेम्पल एक्ट, और महाबोधि विहार बौद्धों को सौंप दे। तो आज जो है तमाम सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, सभी का मंगल, सभी के मंगल की कामना करता हूं कि आप लोगों के माध्यम से ये जो है जनता में प्रचार हो और अन्याय के खिलाफ न्याय मिले। और जो बुद्ध का धम्म है, जो समानता, स्वतंत्र, न्याय और बंधुत्व देता है, भारत का संविधान जो है यहाँ के शोषित, पीड़ित, दलित
दबे कुचले लोगों को न्याय देने की बात करता है। लेकिन बात है, क्योंकि सत्ता दूसरे लोगों के हाथों में है, 90% जो लोग हैं वो गुलाम है। हमारे यहाँ बिहार में जगदेव बाबू थे, वो बोलते थे 100 में 90 भाग हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो 100 में 90 तो संख्या हमारा है, लेकिन राज पकड़े हुए 10 लोगों के पास जमीन सारा पकड़ के बैठे, रोजगार पकड़ के बैठे, सत्ता पकड़ के, हम पर अन्याय हो रहा है। इसलिए संविधान दिन में ये बहुत बड़ा एक मैसेज हम लोग देने वाले हैं कि संविधान बचाओ और उसको लागू करो और न्याय दिलाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे देश की संख्या में जितना नवयुवा है सब उनको परेशानी झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, महंगाई झेल रहे हैं, अन्याय झेल रहे हैं, धार्मिक पाखंड झेल रहे हैं। तो जब हमारे यहाँ देश में संविधान बोलता है सभी को न्याय मिलेगा, कहाँ न्याय है? सभी को बराबरी हक मिलेगा, कहाँ है? कुछ पूंजीपति लोग और अमीर होते जा रहे हैं और दुनिया में, देश में गरीबी दरिद्रता दिनों दिन बढ़ रहा है। ये अन्याय के खिलाफ हम सब लोगों ने मिलकर आवाज उठाना चाहिए। आज जितना भी पत्रकारिता करने वाले लोग हैं उनको भी गला दबा के वो सच नहीं बोल सकते, उनको गला दबा दबा के उनको धर्म का पाखंड परोसने के लिए लगाते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। देश में ज्ञान विज्ञान के लिए हमारा देश जाना जाता था, लेकिन अब अंधश्रद्धा और पाखंड के लिए जाना जा रहा है। तो इसलिए हमें भारतीय संविधान के रक्षा में, समर्थन में, उसको लागू कराने में सभी ने एक आकर के धर्म, संप्रदाय, जाति, ऊंच नीच ये सारा बीमारी छोड़ के, मानवता से बड़ा कोई मार्ग नहीं है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और बुद्ध ने सभी को बोला है कि अपनी अपनी बुद्धि का विकास करो। बुद्धत्व को सब लोग प्राप्त कर सकते हैं, हर मनुष्य का अधिकार है। तो आज मैंने अपने विचार रखे। मैं भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो बुद्ध गया का महाबोधि विहार जो है उसका 95 से 2001 तक के प्रमुख था। वहां पर मैंने महाबोधि विहार का विकास का काम किया है और वहां विकास के काम में कर्नाटक के बहुत से उपासकों ने दान दिया है और वहां पर कुछ रेसिडेंस वगैरह भी हम लोगों ने निर्माण किया था, अवधि परिवार ने दिया था। तो आज सभी लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैंने अपने विचार रखे यो हिंदी भाषा में, मैं तो कन्नड़ भाषा थोड़ा थोड़ा समझता हूं, लेकिन हमारे साथी जो है कन्नड़ भाषा में ये जनता के लिए, कर्नाटक राज्य के लिए वो अपनी भाषा में विचार रखेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।